وہ مار رہا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں نے ابھی بھی مسیح کی بیعت کی ہے. یار منافقت کی انتہا ہوتی ہے مولوی صاحب. جی علی اکبر میری جو بات پوائنٹ تھا نا میرا پتہ نہیں اگنور کر دیا آپ سب لوگوں نے یا آپ نے کم از کم. میرا پوائنٹ یہ تھا اگر فرض کر لیں اگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں ہم سب مان لیتے ہیں درست ہے. میرا اس میں یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا آپ مسلسل جو بھی جس براڈ پہ بھی آپ بیٹھتے ہو آپ اپنے علم اور اپنی اس کے مطابق جو کام آپ کر رہے تھے آپ تسلسل سے کرتے رہتے. وقت نے خود ہی یہ ثابت کر دینا تھا کہ وہ مطلب جو کوئی بھی ایسے کرتا ہے وہ غلط ہے اور آپ ٹھیک ہو. جو آپ ہاں دینے لگا تھا میں بھول گیا تھا سن لیں. اسی طرح جاری رکھا ہوا تھا. کل کی ہی براڈ پہ عباسی نے میوٹ کھول کے بولا تھا کہ یار علی اکبر تو وہ بندہ ہے جب میں نے براڈ شروع کی تھی میری براڈ پہ آ کر کے 5 گھنٹے دفاع کرتا تھا جماعت احمدیہ کا. 5 مولویوں کے ساتھ اکیلا ٹکراتا تھا وہ باندھ رہا تھا بیٹھ کے اور میں ایسے ہی کر رہا تھا. لیکن پرسوں ہماری براڈ پہ ٹیوان اور سرکار آئے انہوں نے آ کے بولا کہ یار ہمیں ڈی اے پہ بھی روزانہ کہتے ہیں کہ کیوں اٹھاتے ہو. اور کل ہماری براڈ پہ دوبارہ طاہر بول کے گیا ہے کہ بھائی صاحب اور مولوی صاحب یار نہ کرو مہربان میوٹ لاؤ ذرا. کل ہماری براڈ پہ طاہر بول کے گیا ہے کہ علی اکبر تو ہے اس کا اخراج ہوا ہے. تب میں نے کہا کہ اب اس کو جا کے میں پوچھوں. میں پھر بھی خاموش رہوں ایسے نہیں ہو سکتا سر. اس کو جواب پھر میں جا کے کچھ اس نے مجھے گالی نہیں دینی. میں نے اوپر بولا میں گالی نہیں تھا سامنے آ جائے آ کے بات کر لے. جو میرے پیٹھ پیچھے کرتا ہے جو یہ آپ کو فون پہ کہتا ہے میرے سامنے آ کے بیان کر دے. ڈرامے کر رہے بیٹھ کے نیچے میں چائے پی رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. اوپر آئے نا پھر سامنے آ کے بات کرتا. آیا ہے جو اس کو پٹی پر ہائی ورائچ نے اور راجہ صاحب نے وہ آ کے اوپر لکھ کے پڑھ دی. جذباتی اپنا کارڈ کھیل کے چلا گیا. جس چیز کا جواب مانگا تو دیے ہی نہیں کہ بھائی تمہیں جواب کیا دیا. مجھے افضل ورائچ نے بولا تھا علی اکبر شاطر میں یہ جواب تھا اس کا کل ملا کر کے. میں تو خاموش تھا. میں تو پچھلے 6 مہینے سے سنی میں اپنے کام میں لگ میں ٹھیک ہے یار کرنے دو ان لوگوں کو یار کرنے دو ان کو نا. اب جو آ کر کے رات اور CCD کے براڈ پہ معافی مانگ کے گیا تو پہلے کہہ دیتا. میں مثالیں دے رہا ہوں کہ مجھے آ کے غیر احمدی بولیں پاکستان شاتم ہے مولوی شاتم ہے علی شاتم ہے میں مان لوں گا بات ان کی نہیں مانوں گا. وہ ہر وقت ان کے پچھواڑے میں گھسا ہوا ہوتا ہے طاہر جو ہے. چلیں علی اکبر اللہ کرے بس اب یہ چیزیں میں سب سے ہم سب کی آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے ان چیزوں کو تھوڑا ان کو وائنڈ اپ کر دیں اور جو ہمارا کام ہے کرنے والا وہ اچھی طریقے سے ہم کرتے رہیں. ہمارے کام کو اس طرح کی چیزیں ڈیریل نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنا جو رستہ ہے واپس اس پہ آنا چاہیے. تو بہرحال ان چیزوں کو وائنڈ اپ کر دیں. تو میری تو یہی درخواست ہے کہ کچھ اچیو نہیں ہونے والا. دوبارہ اپنے واپس ٹریک پہ ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی آپ نے ابھی کیا بولا ہے انہوں نے معافی مانگی رات تو اگر یہ آپ کو پتا ہے تو کوئی چھوڑ دو بات. میں نے نہیں سنا یار مجھے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. میں نے ہاں میرے سامنے بیٹھ کے اس نے مجھے میرے سامنے بیٹھ کے اس نے گالی باز بولا ہے. میرے سامنے بیٹھ کے اس نے کہا کہ جوتی کے نوک پہ علی اکبر ایک دن پہلے کہہ رہا ہے اور رات کو بتا رہے میں نے سنا تو میرے سامنے بازو کے سامنے کہتا آیا تھا نا سامنے وہاں کہتا آ کے. اچھا میرا خیال ہے کہ یہ جو آڈیو سنی نا آپ لوگوں کو دوبارہ سب کو یہ 2-3 دفعہ سننی چاہیے پھر شاید تبدیلی آ پائے اور بات کو سمجھ پائیں آپ لوگ. صحیح ہے. علی بھائی نے پہلے صفحے بھیجیے بولنا چاہوں میں. سر نبی آئے تھے نبی آتے ہیں نبی اپنی سنت بھی بتاتے ہیں نبی خدا کی تعلیم. لوگ بعد والے نہیں مانتے سر نہیں مانتے. بعد والے ایسے ہی کرتے ہیں. بنی ساعدہ میں یہی شروع ہو گیا تھا سر. یار جڑا بندہ لوگوں کے بارے میں کہتا پھرتا نا کہ مینوں نیا کہتا انہوں ٹک ٹاک دے ہونا چاہیے. انجوائے کرو انجوائے. ایک کسی نے کہنا کسی نے کچھ ہو جانا جو وہ پرسنالٹی ہوتی وہی رہنی ہے. جہاں کو تھوڑے بارے غلط رائے قائم کرنا ان کو تیری رائے تیرے نال میری رائے میرے نال چل فون کر پر تیرا لگ میرے پاس. نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ
हर बंदा अपनी जिंदगी में खुश रहे, दूसरों की जिंदगी में आके शातन जी से बोला जा रहा है, वो क्यों बोला जा रहा है? अली अली ये देखो, जब आप टिकटॉक को बंद करते हो ना, आपकी एक टोटल डिफरेंट लाइफ हो जाती है। जितनी यहाँ पर डिस्कस हो रही है, जितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, सही इसका बात कुछ है। फायदा है? आजाद भाई, ये आपकी सारी बातें मैं समझता यार हूँ, आपने शायद कभी कुछ देखा हो कि मैं किसी भी लड़ाई में एंटर अली हूँ? मेरी बात में खत्म होने दो। शायद अली अकबर जिन बंदों के बारे में बात कर रहे हैं ना, सारी जिंदगी फिजिकल उनके आमने सामने ना हो, बस यहाँ पर बात हो गई है, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਓਗੇ। आपको लगे रहो जो करना करो, कोई मैं भारी नहीं सही है। बात, ये बिल्कुल सही बात है। और उसका 30 बराह पे रास्त- मोहम्मद बराह अहमद रास्त भाई, मैं आपकी जवाब लाइफ के देता हूँ साथ ना। ताल्लुक नहीं है ना, नहीं बराह रास्त आपकी लाइफ के साथ ताल्लुक नहीं है, उनको कहोगे ना बहुत अच्छी गल है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖ। अच्छा, मैं मोहम्मद अहमद भाई जवाब देता हूँ ना, सही है। मोहम्मद अहमद भाई, मैं अली अकबर तो नहीं हूँ, मेरे सही जज्बात बात। कभी भी अली अकबर के लिए वो नहीं हो सकते जो जज्बात उसके अपने लिए है, सवाल ही नहीं पैदा होता। सही बात है। मैं वो ब्राड सुन रहा था जिस पे हाफिज साहब ऊपर गए हैं और एक बंदे ने बोला कि अब हम जालिबाज उनके साथ बैठेंगे। सीधी बात है, सही है। यार क़यामत की निशानी नहीं हैगी। आजाद भाई, बात तो पूरी हो लेने देना। क़यामत की आप तो मानते ही नहीं है, आपको क्या टेंशन है? सही है, मर मुर जाना, बस इतनी बात है आपके लिए। हाफिज साहब ऊपर गए हैं, टवाना की बराड है, टवाना ने खुद ऊपर बुलाया है और वो बंदा ये बोल के उधर से चला गया कि अब जालिबाज उनको बुलाओ, बिठाओ जी हमारे साथ। ओ भाई, इतना क्या लेवल है? वो पूछना चाहता हूँ कि जो जालिबाज सारा दिन उस बंदे के साथ बैठते हैं, वो बंदा ये बोल के चला जाए, खुदा की पनाह है, उसके साथ कौन बंदे बैठते हैं जो गालियां नहीं देते? और वो बंदे भी हैं जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से भी देते हैं, और उनके साथ पपियां जपियां सामने भी चल रही हैं, और बिहाइंड द सीन व्हाट्सएप पे कोई भी बात हो जाए, मैं तेनू पीछे समझा लांदा। ये ड्रामेबाजी है मोहम्मद अहमद भाई, जो व्हाट्सएप की ड्रामेबाजी है भाई, वो बराडू पे ना लेके अली आए। ने फिर किसी को ब्लॉक किया। मोहम्मद अहमद भाई, सुन तो लिया करे ना, सारी बात तो वो मजा ही खराब हो सुन रहा हूँ। जाता है। हाँ, तो फिर बीच में ना नहीं बोले। मैंने कुछ कहा नहीं, मैं सुन रहा हूँ। सॉरी अच्छा, कि मोहम्मद अहमद भाई, सिर्फ बात ये है कि जो बिहाइंड द सीन आप लोगों की ड्रामेबाजियां, दोस्तियां चल रही हैं, उसे बिहाइंड द सीन ही रहने दे। मुझे क्या मसला? किस बंदे ने अमर नजीर को मैसेज भेजी है, किसने अफजल वडायत को भेजी है, किसने बैठ के तो डिनर की है या डिनर की प्लानिंग हुई है, भाई अपनी रखो। पर इधर आके ये बताना कि अब जी मेरी सेटिंग हो गई है अफजल वडायत के साथ, तो सबकी सेटिंग वैसी ही होनी चाहिए जैसे मैं सोचता हूँ। जिसने वैसी सेटिंग ना की, उसे मैं शातम बनाऊंगा, मैं जालिबाज बनाऊंगा, उसे साइड लाइन करूंगा। ये किधर का मजाक है? क्या लोग सोचते नहीं है? उनके पास ज़हन नहीं है कि जिस तरह तुम सोचते हो उस तरह हर दुनिया के हर अहमदी चलेंगे? तो इस बात पे फिर सवाल उठेंगे, और ये सवाल उठने जायज भी हैं कि भाई इस तरह अदर चलाना है। तो फिर अदर चौधरी नसरुल्लाह ने बोला कि फिर ठीक है कि तुम अपनी अहमदियत का प्रूफ दो। हालांकि जो भी चौधरी नसरुल्लाह ने उधर अल्फाज बोले इंतहाई गलत थे, पर भाई जिस तरह उसके साथ ट्रोलिंग की गई वो मैंने खुद सुनी है। ये तो इंसान नहीं थे समझ रहे उस बंदे को, और जब वो बंदा अच्छी है तो हर बंदा उसकी तरफ भी हो गया कि उसने इस तरह क्यों किया। यार थोड़ा तो सोचो कि क्यों उसके साथ ट्रोलिंग कर रही हो। और फिर बाद में मुंह पे जुबान पे शीरनी रख के, यार मैं तो अहमदियों को बड़ी इज्जत देता हूँ। ये जो अभी मलक साहब आए थे, इनकी छट्रोल होती है डेली उस बंदे के हाथों, और ये बंदा समझ ही नहीं पाता, इस बंदे में इतनी इस्ते नफ्स ही नहीं है कि जो बंदा इसकी छत्रोल कर रहा होता है उसके साथ ही बैठ के जी कर रहा होता है। ये इस बंदे की हैसियत थी। कौन करता है छत्रोल? ये जो अभी मलक साहब नहीं आए थे जो बोल रहे थे हाफिज साहब को, जिन्होंने मैसेज भेजा कि अगला नबी जो है वो या हाफिज साहब या अहमद जाट,
यार इस बंदे की, ये सिंपल सा बंदा है, इस बंदे की बड़ी चतरोल होती है उन लोगों के हाथों। यार ये और ये चित्रोल बंदा वाला उधर लफ्ज में इससे अंतरा होता है। बेटर लफ्ज कर लो, बेटर लफ्ज चूज कर लो प्लीज। अच्छा, बड़ी ट्रोलिंग हो रही होती है इस बंदे की ना, सही बड़ी ट्रोलिंग हो, इंतहा दर्जे की होती है। मैंने जब, ये तो 5-6 महीने पहले की बात है, जब मैंने सुना यार इस बंदे के साथ ऐसी होती है, मैंने उस ब्राड पे जाना छोड़ दिया, नीचे से जाना छोड़ दिया कि इस बेचारे बंदे को नहीं समझ आती। मलक भाई का नाम तो बता दिया, दूसरे बंदे का नाम हमारे ताहिर भाई, हमारे ताहिर भाई। अच्छा 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 जी, ये बंदा ऊपर चढ़, वो जो ताहिर रटवाना बैठे हुए थे, ये बंदा ऊपर चढ़ के अस्सलाम वालेकुम, वो आज से इतनी ट्रोलिंग इस बंदे की होती थी ना कि यार तुम्हें तमीज नहीं है, 2 बंदे बैठे हैं, ये है वो है, तुमने आके बीच में अपनी सलाम डाल दी है, हमारी आपस की बातें थी, ये तो ही मजहबी ब्राड नहीं थी, तुम इधर क्या लेने आए। वो आगे से फिर बेचारा शर्मिंदा हो के यही बोलता था अच्छा मैं चला जाता हूँ, नहीं तुम बस बैठो, अब आई गए हो। ये यार क्या हो गया है, क्या जो एक आम अहमदी हैं जिनके पास इतना IQ लेवल नहीं है, उनने तुम लोग क्या समझते हो, उनकी हैसियत नहीं है, वो इंसान नहीं है। और ये मोहम्मद अहमद भाई, ये वो चीजें थी कि जिनकी वजह से मैं अफजल बड़ाई से जाके लड़ पड़ा था जिस दिन उसने वो स्टेटमेंटें दी थी, नहीं तो मैं तो उसके पास जाता ही नहीं था। उस दिन बैठे अफजल बड़ाई साहब ने, ये जो मौलवी साहब बैठे हैं, 100 दफा मौलवी साहब पे शातम होने का फतवा दिया था, खुद मैंने सुना था, 100 दफा उन्होंने बोला था मौलवी साहब को कि ये नीचे मौलवी जो बैठा है ये शातमे रसूल है। ठीक है। अच्छा यार, मेरी ये चीज मोहम्मद अहमद भाई आप नहीं बोलने देना चाहते, फिर मैं लास्ट सेंटेंस थे, मुझे लगा आपकी मुकम्मल होगी, सॉरी आप करें मुकम्मल। जब होएगी मैं आपको बता दूंगा मोहम्मद अहमद ओके। कि जो बेचारे मासूम अहमदी है, जब उनके साथ नाइंसाफी या ज्यादती होती है, वो चाहे तरह दूसरा सही चाहे तरह की अपना, मुझे अफसोस होता है कि बेचारे ये पहले उनके हाथों मरते थे, अब अपने उनके हाथों मरेंगे। सीधी बात एक दफा मैंने फिर बोल दी थी, जब जज्बात आ जाते हैं फिर भाई ये जमात ने फिर तलीम दी है, कभी भी नहीं। और उसके बाद यार एक दुनिया अहमदी होया, मैं खुद समझता हूँ कि एक सारी जिंदगी उसने कहीं पे स्पेंड की है, उसने उस तरह की तलीम ली है, उस तरह से सोचा है। जब वो जमात में आता है, जाहिर बात है उसे थोड़ा टाइम लगता है चीजें समझने में, इस चीज पे मैं उसे नहीं बोलता, पर आज उसे नहीं बताएंगे कि भाई ये जो आम अहमदी आते हैं जिनके सामने तुम चातर बांध के बैठ जाते हो और उन पे चातरी करते हो, भाई अपनी ये चातरी होशियारी चलाकी अपनी जेब में रखो, अपनी जो दुकान चलानी है वो चलाओ। यार उस बंदे ने आमर नजीर तो अपनी ब्राड पे लिया है, किसी बंदे ने एक लफ्ज बोला है कि आमर नजीर उस बंदे की ब्राड पे किस तरह चला गया? ये बोलने की बजाय शाम में उधर मुरब्बी साहब बैठ के बोल रहे थे अब मैं बैठा करूंगा। ये क्या थी? ये इनडायरेक्ट सिग्नलिंग थी कि भाई मेरी ब्राड पे बड़े बड़े लोग नहीं आएंगे तो मैं आमर नजीर तो उठाऊंगा। और साथ ही जिधर उसने सिग्नल दिया था वो हाथ जोड़ के उधर पहुंच गए थे। ये है रियलिटी फिर मोहम्मद अहमद भाई। और दुनिया समझती है कि बिहाइंड द सीन जो बातें चल रही हैं वो आम अहमदी नहीं समझ सकते। इतनी सी मेरी बात थी जी, जारी रखिए। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर पहले जो अपने मौलवी साहब थे वो कह रहे थे कि मैं तबसरा करना चाह रहा हूँ, और थोड़ी सी उन्होंने बात की तो बीच में इंटरप्शन आ गई। देखो, तबसरा उनकी अपनी राय है, जो उनको सही लगेगा वो करेंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि सब उससे इत्तेफाक भी करें, पर एटलीस्ट उनको बात मुकम्मल करने दी जाती, उनका तबसरा करने दिया जाता। लास्ट में आप कह देते कि यार हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, ये आपकी बात सही है, मगर उनको प्लीज़ बात पूरी करने दो। मैं वापसी कहूँगा अली भाई के सारी की बात की। तो मौलवी साहब आप अपनी बात जो मौलवी साहब आधा मिनट दी मौलवी साहब कर लेते हैं। मौलवी साहब बेशक उस जो आपने सुना तबसरा करें, लेकिन उस पर तबसरा ना करें जो मामला उधर चले हैं ना, उधर आके कह रहे हैं ये फलाना गलत है तो फलाना ऐसे है, उसके ऊपर जो सुनाया गया ना उस पर तबसरा करें अपना ना। क्यों रोक रहे हो उनका? वो तबसरे में वल्लाह आलम नहीं ना आता, वल्लाह आलम अंदर नहीं आता ना। देखें मौलवी वो उलमा होता है शरीयत में समा वाला काम ना करें। अली भाई आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यार ये वल्लाह आलम आपकी सारी बात को खत्म, बस इतना चाहिए, पर उनको करने तो दो यार, उनको बोलने तो दो। मतलब मैंने ऐसे नहीं है जहाँ पे उनकी आवाज़ बंद की जाएगी। यार
मौलवी साहब आप कोई बात करना चाह रहे हैं? फिर मंसूर भाई भी बात करने लगे थे, वो भी बड़े तहम्मुल से सुन रहे हैं। मंसूर भाई सॉरी, आपकी भी बात कट गई थी। तो दोनों भाइयों में से जो पहले अपना अनम्यूट करेगा वो अपनी बात रख सकता है। मंसूर भाई, मौलवी साहब दोनों को लगता सवारियां आई हुई ने। अच्छा ये इनके सवालियां रहे इनके पास ना। बट ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਾਂਗੇ बट बड़ा को मोच पाया है। भट्ट साहब, हाँ जी भट्ट साहब। यार ये एक बी बॉय करके कुछ आए थे, वो उनको जानते हैं कोई? कौन साहब हैं वो? पर अब तो नहीं, उनकी रिक्वेस्ट चली गई है। तो जी भट्ट साहब सॉरी, आपने इनके झमेले सारे सुने, तो अब आप कुछ कहना चाहें, कोई नई तहकीक आपके पास हो? और मैंने देखा आप हमेशा एक नई बात करते हैं, तो वो कुछ है तो प्लीज़ करें पेश। मुशाहिदाबाज ने बहुत बड़े। हाँ जी भट्ट साहब। फिलहाल तो मेरी तबीयत खराब है, उसके लिए दुआ करो। ओ हाँ यार, तीमारदारी तो रह गई है हमारी अपनी लड़ाइयों में। बट साहब अभी कल की निस्बत कैसा है आपका? गला बेहतर हुआ है? कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं आप कि वर्स्ट हो यार एक ही पोजीशन पे खड़ा हो गया। अच्छा, अल्लाह ताला फजल करे। आप सिल्वर टी पी रहे हैं? सिल्वर टी भी पिए? वो मुझे मेरे उस्ताद जी ने बताया कि ऐसी सिचुएशन में सिल्वर टी बहुत लेनी पड़ेगी। हाँ, वो अगर तो एक ही obviously जगह पे करनी हुआ है पड़ेगी। ना, फिर एंटीबायोटिक। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया एंटीबायोटिक के साथ साथ सिल्वर टी पिए। सिल्वर टी से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। वो सिंपल इतना ही है कि सिल्वर के बर्तन में पानी गर्म करके उसको सिप करके पिए तो आपके गले में बड़ी बेहतरी। पाट साहब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहाँ पे सर्दी का मौसम है, तो शायद मौसम की वजह से वो बीमार हैं। तो मुझे ये नहीं समझ ये भट्ट हैं कि बट हैं, क्योंकि भट्ट और है और एक आलिया भट्ट भी है ना, वो भट्ट हैं उधर। ਯਾਰ ਬੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ में लड़ाई करके जावां, मैं घर जाना में। वो जी तो जी जरूर, वो भी कभी अच्छी होती है। करें मौलवी साहब। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਜਾ ਕੇ लड़ाई करनी है। मैं बीमार जरूर है, पर पहले कौन बंदा दसे कर लो। ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। मौलवी साहब ने लाजमी अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਰਿਸਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ, ਜੌਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਥ में बात भी करो। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਟ ਫੇਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਮਿਊਟ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਊਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ। ਲੈ ਬਈ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਭੈਣ ਜੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਫੇਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਾ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬਾਟਨ पर ड्रॉप कर ला, मैं थल्ले नहीं करो ना, वो भी कर लेंगे म्यूट। मौलवी साहब आप करो ना बात जल्दी यार। हाँ जी, भट्ट साहब ने म्यूट कर लिया है। यार मैं ना मूमी गल्लां करना वा, लेकिन विच खसूसी गल्लां भी हो जांदियां ने। असल असी बंदे जिहड़े ना बंदियां दे पिछा छड्डदे ही नहीं, और असी बड़े नारे मारने, किधरे मासूम बन जाने, किधरे असी आने जमात ते कोई दूजा जुल्म कर रहा, जो खुद करिए वो सानू याद ही नहीं आउंदा। अपनी हत्तां भी इंसान नूं वेखणियां चाहीदियां ने। सोशल मीडिया वे इत्थे 50 किस्म के लोग होने ने, बई तुहाडा अपना रवैया की है, उसनूं पहलां जज करो, उसनूं पेश करो। सही बात है यार तू तो चुप कर, मैं इन्होंने लॉग ऑफ करना वा यार, इन्हें नहीं चुप होना। गलत गल कर रहे हो, अल्लाह ताला तुहानू सजा दे रहा है। और बच जो गलत गल ना करो, छट्टा बड़ा बुरा क्यों पैना? मैं गलत मौलवी साहब छट्टा बुरा क्यों पैना? गल करने वाली जवाद भाई थल्ले ने, जवाद भाई नु बुलाने ने, जवाद भाई दी तकरीर सुनाने बेरब्त इन्हां दी। नहीं यार एक सिंपल मोहम्मद अहमद साहब, तुसी भी चंगे भले पुराने हो इस फील्ड विच, सोशल मीडिया अहमद भाई जो नीचे लिसन कर रहा है उसे क्या मौलवी साहब दादा देख लिया घंटा चुप बैठा यार, इतने 50 बंदे दरमियान च बोल पैंदे ने। अच्छा करो इतने मोहम्मद अहमद साहब तुसी भी बड़े पुराने हो इस फील्ड विच। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਮਹਦੂਦੀਅਤ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਫਾ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਮਾਰੋ, ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੋ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਯੈਸ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਆ ਇਸ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੇ? ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀਏ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ ਬਾਈ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੀ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਗਲਤ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਉਧਰ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, 5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਨਕੀਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ, ਫਤਵੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਦਲਾਇਲ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਫਤਵਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮੁਲਦ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਕਾਫਿਰ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਇਖਰਾਜ ਸਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦੇ ਜੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਲਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗਿਰਦ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੈਰ ਦੀ ਕੱਛ ਚ ਵਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਕੀਨਨ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ और अमन नज़ीर साहब का खास मुरीद आ गया, रिकॉर्डिंग करेगा एहतियात से। हाँ लेकिन ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅभी 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 3 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 3 गुना क्या मिल रहा था? 3 गुना क्या मिल रहा था? प्राइस से ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ गर्मी क्यों यार मौलवी साहब आपको प्लीज वो लेना चाहिए था यार, ये कोई इम्पोर्टेंट बात थी यार। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ